हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, प्रीवियस जो ऑनलाइन क्लासेस हुई, जो वीडियो आप तक पहुंचे, उसमें हमने इंग्लिश प्रोज का एक लेसन उसको कंप्लीट किया था, आ गर्ल विद अ बास्केट। उसके बाद इंग्लिश पोइट्री के 2 लेसन, कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ एंड ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उसको कंप्लीट किया। टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू लेसन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। शॉर्ट स्टोरी जो आपकी 3rd बुक है, उसका फर्स्ट लेसन आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और इस लेसन का नाम है द गोल्ड वॉच। बच्चों, पहले मैं ये बता दूं आपको कि शॉर्ट स्टोरी से कोई केवल शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा। तो आज हम इसकी रीडिंग करेंगे और इस पूरी स्टोरी, चूंकि थोड़ी बड़ी स्टोरी है, तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। आज हम हाफ पार्ट इसका रीडिंग करेंगे और आपको मैं इस स्टोरी के बारे में बताऊंगा और उसके बाद में फिर वर्ड मीनिंग और जो शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हम लेट्स स्टार्ट रीडिंग ऑफ दिस लेसन द गोल्ड वॉच। बच्चों, ये जो स्टोरी है द गोल्ड वॉच, इसके राइटर जो स्टोरी टेलर हैं वो मलयालम के राइटर रहे हैं और उनका नाम पंजकर्रा रफी, बहुत ही फेमस। और उन्होंने अपने आसपास जो कुछ उन्होंने देखा, बहुत ही जमीन से जुड़े हुए जो लोग थे, उनकी परेशानियां क्या थी, समाज की क्या परेशानियां थी, उनके बारे में उन्होंने स्टोरीज लिखी हैं। उन्हीं में से ये दिस इज वेरी फेमस स्टोरी और इसको काफी हमारे इंटरमीडिएट में शुरू से रखा गया है। तो आज आइए हम इस स्टोरी को शुरू करते हैं। नाम है द गोल्ड वॉच, पंजकर्रा रफी। बच्चों, इसकी आज हम उसकी हम रीडिंग करेंगे और इसके बाद में रीडिंग करने के बाद में मैं आपको इसकी हिंदी बताऊंगा। As on many previous nights, Sanku could not get any sleep that night. He turned and tossed in his bed, but it was no use. The more he thought, the worse he felt. He closed his eyes and lay on his torn mat in the darkness, and yet he could see it as clearly as during the day. The deserted office room, when everyone had gone out for rest or for lunch. The glass window was only partly closed. On one end of the table inside were a few fat volumes. At the other end, a pen, an ink bottle, and so forth, and in between was a gold watch with its gold chain placed on a book. Open the window and stretch out your hand about a foot and you can pick it up. Everyone is out for lunch. Nobody will know. Sanku remembered his efforts, his cowardice, and his vacillation during the past few days. He had never seen anyone there at that time, and yet he had been afraid. He had trembled and felt breathless. That was why he had refrained from taking the watch every time. It would not do to put it off any longer. If he thought any further, he would not be able to do anything. He might even blurt out his intention accidentally, so he must take it tomorrow. Suppose he did not? Sanku's thoughts began to linger over the thorny problems of his life. Tomorrow would be the 3rd day of the month. In another 3 days, he would get his pay, 13 rupees for 13 days. He had to pay 4.5 rupees for purchases at the store. There would be a balance of 8.5 rupees. He had repaid only 5 out of the 10 rupees he had borrowed from the fund the previous month to go home from his mother's death anniversary. No, he must pay the remaining 5 rupees with interest at 6 paise a rupee a week. At the tea shop, he owed over 3 rupees for 2 weeks, besides previous arrears amounting to ₹1.50. He owed 6 rupees to Ali for supplying extra rice, beedies,
and other odds and ends. 1 month's house rent was 3 rupees. In addition to these sums, he had taken small loans of 12 paise, 25 paise and 50 paise from several people. And his wife had reminded him 2 days before about the 1 rupee to be paid to the fishwoman. Sanku mentally added up the total amount that he needed. बच्चों, ये अभी हमने इस स्टोरी के फर्स्ट 5 जो पैराग्राफ्स थे उसकी रीडिंग की. आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग अबाउट दिस स्टोरी. ये जो स्टोरी है, दिस इज अबाउट अ वेरी पुअर वर्कर नेम्ड संकु. संकु के बारे में, संकु एक फैक्ट्री में वर्कर था और ही वॉज वेरी लो पेड वर्कर. उसको तनख्वाह सैलरी जो मिलती थी 1 रुपी पर डे, 1 रुपी फॉर अ डे. एक दिन में 1 रुपया उसको मिलता था. लेकिन जैसा कि आपने देखा है कि अधिकतर इस तरह के जो लोग होते हैं उनके एक्सपेंसेस हमेशा ज्यादा रहते हैं. वो भी कर्ज में लदा हुआ था, बहुत सारा कर्जा उसके ऊपर हो गया था. तो उसने ये सोचा कि क्यों ना मैं अपनी फैक्ट्री, जिस फैक्ट्री में वो काम करता था, उस फैक्ट्री के जो मैनेजर थे वो ही वॉज एन इंग्लिशमैन, एक अंग्रेज थे. उनके पास एक सोने की घड़ी थी. तो शंकु ने सोचा कि अगर मैं उस घड़ी को चुरा लूं तो मेरे जितने भी जो कर्ज हैं वो सब उनसे मैं मुक्ति पा लूंगा. और वो घड़ी जो थी, उस फैक्ट्री में जो उनका ऑफिस था, उस ऑफिस में एक खुली हुई खिड़की के पास में टेबल थी. टेबल पर कुछ किताबें रखी रहती थी, कुछ दूसरा सामान रहता था और बीच में वो जो इंग्लिशमैन थे, जो मैनेजर थे, वो अपनी घड़ी को उतार के सवेरे रख देते थे. शंकु की नजर हमेशा उस घड़ी पर रहती थी कि केवल अपना हाथ अंदर डालना है खिड़की में और घड़ी को उठा लेना है. और उसको लगा कि शायद दिस वुड बी द बेस्ट एंड इजीएस्ट वे कि अपने कर्जों को मैं उनसे मुक्त हो सकूं. कई दिनों से वो ट्राई कर रहा था, लेकिन हमेशा ऐसा होता था कि उसका डर, उसका संकोच उसको ये काम करने नहीं देता था. कई बार उसने कोशिश की कि मैं चोरी करूं, लेकिन हमेशा वो डर से पीछे रह जाता था. लेकिन उस रात जब उसने देखा कि उसके पास ये नो अदर ऑप्शन देन टू स्टील द गोल्ड वॉच, उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था कि उसको हर हाल में घड़ी चुरानी थी. उसने मेंटली जो पैसा था, जो उस पर कर्ज था, वो उसने ऐड किया. वो टोटल 22 रुपए 13 पैसे उसने ऐड किए, जबकि उसको सैलरी के 13 दिन के 13 पैसे मिलने वाले थे. अब उसने सोचा कि जिसमें 4.5 रुपए पहले से जो कर्ज था उसको देने थे और बाकी 6 रुपए उसने फंड से उधार लिए थे वो उसको देना था, तो बचना उसके पास कुछ नहीं था. उसने सोचा कि अगर मैं घड़ी को चुरा लूं तो मैं अपने इन सब कर्जों से, और जो लोग उसको गालियां बकते हैं, वल्गर वर्ड्स में उससे बात करते हैं, तो वो उन सब से मुक्ति पा जाएगा. ये सोचकर उसने उस घड़ी को चुराने का निश्चय कर लिया. तो बच्चों, आज हमने ये 5 जो पैराग्राफ्स हैं इनके बारे में मैंने आपको हिंदी बताई. नेक्स्ट वीडियो में हम आगे जो 6 बाकी जो पैराग्राफ्स हैं इसी तरह से धीरे धीरे हम इनके बारे में डिस्कशन करेंगे. और बच्चों, मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि ये जो पैराग्राफ्स हैं इनमें से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं आएगा, कोई लॉन्ग आंसर नहीं आएगा, केवल शॉर्ट आंसर्स आएंगे, जिसके लिए आपको इस स्टोरी का ज्ञान होना बहुत जरूरी है. स्टोरी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है. स्टोरी आपको पता होगी तो आप शॉर्ट क्वेश्चंस आसानी से कर सकते हैं. तो बच्चों, अभी आज हम केवल इतनी स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम आगे इसी तरह से आपको रीडिंग कराएंगे, हिंदी बताएंगे और सबसे लास्ट में हम इसके वर्ड मीनिंग आपको लिखवाएंगे. और वर्ड मीनिंग लिखवाने के बाद में आपको जो शॉर्ट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो सब कराएंगे. Till then, happy learning. Thank you very much.